پانی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ شہر اولیا کے مختلف علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہو گیا ہے۔ واسا کی جانب سے واٹر سپلائی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ جمال، کاتیمار، محلہ کھوکھرا سمیت کئی علاقوں میں 2 ہفتوں سے پانی کی نہ ہونے کی شہری پریشان ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ شہر اولیا کے مختلف علاقوں میں پینے کا پانی نایاب ہونے لگا۔ واسا کی جانب سے واٹر سپلائی کی بندش کا سلسلہ جاری ہے۔ حافظ جمال، کاتیمار، محلہ کھوکھرا سمیت کئی علاقوں میں 2 ہفتے سے پانی نہ ہونے کی وجہ سے شہری پریشان ہیں۔ اس پر بات کریں گے ابراہیم خان سے۔ ابراہیم، بتائیے گا وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملتان کاتیمار روڈ پر، اور یہاں پر جو ایک اہم مسئلہ یہاں کے مکینوں کو پیش ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس پینے کے لیے صاف پانی جو ہے وہ میسر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر سرکاری پانی جو ہے وہ آنا ہی بند ہو گیا ہے۔ 2 ہفتے سے یہاں پر سرکاری پانی بالکل بھی جو ہے وہ نہیں آ رہا۔ مزید ہم یہاں کے علاقے مکین سے بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے؟ بھائی جان بتائیے گا، 2 ہفتے سے پانی نہیں آ رہا؟ نہیں، پہلے 2 دن آیا، یہ واسا والوں کی گاڑی آئی ہے صاف پانی کی، اس کے بعد کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن ہر روز یہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے گندا، اور وہ گاڑیاں آتی ہیں 2-2 4-4 گھنٹے ایسے بے فضول کھڑی رہتی ہیں پانی نکالنے والی، بھر کر کبھی وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے پانی لیک ہو رہا ہے، سارا پھر روڈ پہ آ جاتا ہے، کوئی آنے کے مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ مسئلہ حل نہیں ہے، سیوریج لائنز فارغ ہوئی پڑی۔ آپ بتائیں بھائی جان، جو آفیشلز آتے ہیں واسا کے جو آتے ہیں وہ کیا بات کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں 2 دن لگیں گے، 4 دن لگیں گے، لیکن 15 دن ہو گئے ہیں ان کو یہی 2-4 دن کہتے ہوئے، لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا، جی بالکل 2 ہفتے ہو گئے ہیں، مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ یہ صرف اس علاقے کی بات نہیں ہے، شہر کے مختلف علاقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے کہ وہاں کے جو مکین ہیں، جو رہائشی ہیں، ان کو پانی بھی جو ہے وہ صاف فراہم نہیں ہو رہا ہے پینے کے لیے۔ شہر کے مختلف علاقے صحیح ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ٹرائبل ایریا بارتھی میں بھی سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا یونٹ قائم کر دیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو شہر میں صفائی کے لیے مزید مشینری دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ تفصیلات جانیں گے رضا ملک بتائے گا کتنی مشینری دی جائے گی؟ لوکل گورنمنٹ ساؤتھ پنجاب جو ہیں وہ ڈیرہ غازی خان ڈویژن کے ان کے دورے پر ہیں، اور پری مونسون سیزن کے حوالے سے جو انتظامات ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شہر میں صفائی کی صورتحال کے حوالے سے بھی وسائل اور مسائل دونوں کو جو ہے وہ ریویو کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تونسا اور بارتھی میں بھی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے جو ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ساؤتھ پنجاب۔ سر، ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلمس، وسائل اور مسائل دونوں حادثے کا ساتھ ساتھ ہیں، تو کیا نظر آ رہا ہے کہ سی ایم صاحب کا بھی ویژن ہے، ڈیرہ غازی خان فوکس ہے ان کا، تونسا بارتھی، تو کیا کیا اقدامات جو ہیں وہ چل رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پچھلے 2 دنوں سے ڈی جی خان، تونسا، بارتھی اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی باقی علاقے ہیں ان کا میں وزٹ کر رہا ہوں۔ بارتھی میں کل ہم نے ایک تو ہماری وہاں پہ اسکیم چل رہی ہے قبرستان والی، اس کو میں نے وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ ایک ہم نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ یونٹ اسٹیبلش کر لیا ہے، اور کچھ اور ہماری اسکیمیں تھیں ان کو دیکھا۔ بارش کے حوالے سے میں اگر بات کروں تو بارش کا پانی جو ہے وہ کل کافی جمع تھا، تو اس کا دیکھا کہ کہاں کہاں پہ کوئی ہماری اسکیمیں ایسی تو نہیں ہیں جہاں پہ پانی رکتا ہو۔ تو الحمدللہ ہماری جتنی بھی اسکیمیں ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں وہاں بڑی اسموتھلی جو ہے دے آر فنکشننگ۔ آج جہاں پہ اسی حوالے سے دوسری میٹنگ تھی، سالڈ ویسٹ کمپنی جو ہماری ہے، انہوں نے جو انتظامات کیے سالڈ ویسٹ کے حوالے سے، خاص طور پہ دہلیز آپ کی خدمت پروگرام کے حوالے سے جو انہوں نے کیا کام، وہ بڑا مطلب اپریشیبل ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور بڑا اچھا پرفارم کیا، آلدو ان کے پاس ابھی HR کی کافی شارٹیج ہے، ان کے پاس اکوپمنٹ کی بھی شارٹیج ہے جو وہ بھی لینے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اشتہار دیا ہوا ہے، کچھ HR ابھی ہائر ہو جائے گی، باقی ہم اس کو 2 فیزز میں لے رہے ہیں۔ مور دین 1 بلین کا اکوپمنٹ جو ہے انشاءاللہ کمپنی کے پاس آ جائے گا، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک خط جو ہے کمپنی کی پرفارمنس میں مزید بہتری آئے گی۔ دوسرا، ہماری جو میٹروپولیٹن کارپوریشن بہالپور ہے، ڈی جی خان ہے، تو انہوں نے اپنے کنٹینجنسی پلان پورا بنایا ہوا ہے برسات کے حوالے سے، کہاں کہاں پانی کے جو سینسٹیو پوائنٹس ہیں، پانی رکنے کا وہاں پہ کوئی چانس ہے، تو ان کی مشینیں، ان کے اکوپمنٹ، ان کے جو HR ہے وہ ساری موبلائز ہے۔ ابھی بھی یہی چیز ریویو کر رہے تھے کہ برسات کا چونکہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو پورے شہر میں کسی بھی جگہ پہ پانی نہیں رکنا چاہیے، اور کہیں پہ اگر کوئی گڑا شڑا ہے یا مطلب چانس ہے کہ کوئی سیوریج بیٹھ سکتا ہے،
उस हवाले से दे आर वेरी एक्टिव, वेरी विजिलेंट। एक सिस्टम इनको मैंने ये कहा है कि एक सिस्टम बनाएंगे मॉनिटरिंग का, एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम होगा, पूरे जोन वाइज एरियाज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी जगह पे कंप्लेंट आएगी, पब्लिक की कंप्लेंट आएगी, दैट वुड बी इमीडिएटली एड्रेस्ड और वो इस फौरी रिस्पॉन्ड करेंगे। किसी भी जगह आप मीडिया वाले भी बताएंगे तो इंशाल्लाह कोशिश तो यही है कि जी पूरे शहर में म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं उनको बेहतर बनाया जाए और रिस्पॉन्सिव बनाया जाए। जी बिल्कुल, जो है एजेंट की जो म्यूनिसिपल सर्विसेज है। बेहतर रजा मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। महफूज खुराक की फराहमी की जानिब एक और कदम, अब सरकारी अस्पतालों में खाने का म्यार होगा बेहतर। सरकारी अस्पतालों की कैंटीन्स पंजाब फूड अथॉरिटी चेक करेगी। जनूबी पंजाब की तमाम टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों को मुनासर जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में कैंटीन्स की इंस्पेक्शन रिपोर्ट 7 रोज में तैयार करने की हिदायत जारी की गई हैं। तमाम सीओज को रिपोर्ट बर वक्त जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई है। आपको बता रहे हैं महफूज खुराक की फराहमी की जानिब एक और कदम, अब सरकारी अस्पतालों में खाने का मयार होगा पहले से बेहतर। पीएचए मुल्तान के पार्कों की सिक्योरिटी के लिए इकदामात, निजी कंपनी और पीएचए के माबैन 1 साल का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत 29 सिक्योरिटी गार्ड्स को मुख्तलिफ पार्कों में तैनात किया है। तफला जानेंगे अली रियाज से। अली बताइएगा। बिल्कुल, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान की जानिब से एक अहम कदम उठाया गया है। वो ये है कि पार्कों की सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उसके लिए एक जो निजी कंपनी है उसके साथ मुआहिदा किया गया, जिसमें 1 साल के लिए जो 29 जो सिक्योरिटी गार्ड है वो उनको मुहैया किए गए, जिनकी जो मुख्तलिफ पार्कों में तैनाती जो है वो अमल पैरा की होगी। इसी से सबसे अहम बात यह है कि पीएचए मुल्तान में एक अरसे से ये रुझान था और ये देखने में भी आ रहा था कि जो माली हैं वो बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, जिसमें कमो बेश 60 से ज़ायद ऐसे माली हैं जो मुख्तलिफ पार्कों में बतौर सिक्योरिटी गार्ड अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो मेरे साथ अभी डायरेक्टर जनरल मौजूद, उनसे पूछे डीजी साहब से, जैसे सबसे पहली बात तो अच्छा कदम है, ये बताएगा इन मालियों की कहाँ कहाँ तैनाती मुकम्मल होगी? ये सिक्योरिटी गार्ड जो हमने आउटसोर्स किए हैं ये बड़े वेल ट्रेंड हैं और इनके पास हर तरह की ट्रेनिंग और आलात कार जो हैं वो मुहैया हैं जो कि गार्ड के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए ज़रूरी हैं। और एग्रीमेंट के मुताबिक हम इनको जो सरकारी रेट है उसके मुताबिक हमने इनको हायर किया है 19,900 रुपये के रेट के मुताबिक, जबकि मार्केट में भी इनकी अवेलेबिलिटी 28-29 हज़ार से कम नहीं है। और कई एक इदारे ऐसे हैं जो अब इस रेट पर इनको हायर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हमने एग्रीमेंट के मुताबिक इनसे जो ड्यूटी आवर्स हैं उसमें भी हमें फ़ायदा है और कंपनी की ज़िम्मेदारी होगी कि 24 घंटे वो पार्क्स को जो है वो गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। और उसके नतीजा में हमने आइडेंटिफाई किए हैं हमारे जो 16 बड़े पार्क्स हैं जिनका रकबा भी 4 एकड़ से ज़ायद है, जो मेन शाहराहों पर वाक़े हैं, उन सब में ये वेल ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड तैनात किए जाएंगे। इस वक्त कई पार्क्स में मालियों से काम लिया जा रहा था, तो जाहिर है वो अपना काम भी करते थे और साथ गार्ड का फ़राइज़ भी अंजाम देते थे, तो उनकी तवज्जो जो है बढ़ जाती थी, तो लिहाजा मसाइल पैदा हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मसाइल हल हो गए हैं और आज से उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। काम शुरू कर दिया, गार्ड जो तैनात किए जाएंगे, मसाइल हल हो गए हैं। अली आपका शुक्रिया। एजुकेशन सरगोदा रियाज कदीर भट्टी कहते हैं स्कूल खुलने के बाद से स्कूलों में गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग का मसला भी दरपेश है। कई बार कह चुके हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। इसी पर बात करेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताइएगा। महकमा एजुकेशन ने जैसे ही स्कूल खोले उसी तरीके से फौरी तौर पर ऐसे लग रहा है जैसे बिजली का शॉर्टफॉल शुरू हो गया और लोड शेडिंग बार बार होती दिखाई दे रही है, जिसमें स्कूल नन्हे मासूम बच्चे भी जो इफेक्ट हो रहे हैं। और इस दौरान में आज और कल जो लोड शेडिंग का शेड्यूल भी फेस्को की जानिब से सरगोदा में जारी कर दिया गया। वो स्कूल जो कि इसकी ज़द में आएंगे वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, हमारे साथ CEO एजुकेशन सरगोदा रियाज कदीर भट्टी साहब हैं। भट्टी साहब बताइएगा किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल मामला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि मौसम की सख्ती को देखते हुए हमने 3 दिन पहले एक लेटर जारी कर दिया था, जिसमें पहली बात तो ये की गई कि हमारी जो क्लास नर्सरी है, 1 है और 2 है, इनका दौरानिया हमने 3 घंटे कर दिया था कि इन बच्चों को 3 घंटे के बाद आप घर को वापस भेज दें।
फिर हमने इसमें दूसरी जो ऑप्शन जो बच्चों टीचर्स को दिया था कि प्राइमरी तक के तमाम बच्चों को यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल आने की तरगीब दें और वो खुले जूते पहन के आएँ, वो सर पे अपने लाजमी सर ढांप के आएँ, टोपी लें या कपड़ा लें, ताकि जो हिफाजती इक़दाम हम कर सकते थे करें। इसमें अगली जो इख्तियार हमने अपने तमाम हेड टीचर्स को दे दिया है कि कहीं पे अगर ऐसी सूरत हाल बन जाती है, लोड शेडिंग हो गई, पानी नहीं मिल रहा या कोई और मसला बन गया, तो प्राइमरी स्कूल का और एलिमेंट्री स्कूल का हेड टीचर अपने ईओ को इतला दे के वो स्कूल को बंद कर सकता है। इसी तरह जो हाई स्कूल्स जहां ये इशू खुदा न खासा बन जाए तो वो अपने डीओ सेकेंडरी को इतला दे के स्कूल बंद कर सकते हैं। बच्चों की जान और बच्चों की सेहत सबसे अजीज है, बाकी चीज़ें इंशाल्लाह सारा कुछ कवर हो जाएंगी। तो अपने तौर पे हम इसमें जितने स्टेप्स ले सकते थे हमने लिए हैं। फेस्को को भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि लोड शेडिंग ना की जाए, लेकिन वो कौमी मामला है कि इस वक्त जो सूरत हाल बन गई शायद उसमें सरगोदा भी बेबस है, लेकिन स्कूलों में इंशाल्लाह हमारे हेड टीचर्स अब बाइख्तियार हैं, वो फौरी तौर पर फैसला करने की पोजीशन है। जितने भी स्कूल हैं सारे आपके बच्चों की तरह हैं, आप जैसे अपनी औलाद को समझते हैं, तो क्यों ना छुट्टियां दे दें जब गर्मी इतनी ज़्यादा? ये फैसला तो हुकूमत कर सकती है, मैं अपने तौर पे नहीं कर सकता। हुकूमत ने आज एक अच्छा कदम उठा लिया है कि स्कूल टाइमिंग जो है 7 से 11:30 4.5 घंटे की ड्यूरेशन कर दी है। हमारी पहले भी 4.5 घंटे थी, लेकिन बहुत से इजला में 5 या 5.5 घंटे थी। एक तो ये यूनानिमसली पूरे पंजाब में 4.5 घंटे हो गई है, फिर ये मजीद नीचे आ गया 7 से 11:30 बजे तक। निस्बतन मौसम बेहतर होता है और ये सूरत मौसम बेहतर होता है। मौसम मुल्क आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के चेयरमैन ख्वाजा सुलेमान सदीकी गल्ला मंडी, लोहा मार्केट और ट्रक अड्डों की शहर से बाहर मुंतकली के हवाले से मुल्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। राज फैलाया हुआ है और जो ताजिर बेचारा अपना कारोबार कर रहा है वो अपने कारोबार से भी मुतासिर हो गया कि हाँ जी क्या होगा, हाँ जी कोरोना की वजह से बड़ा मुतासिर है, हाँ जी क्या होगा। कोरोना तो वैसे पूरे मुल्क के लिए है, कोरोना पे तो हर आदमी मुतासिर हुआ है। तो इस लिहाज से ये मजबूर कर रहे हैं कि जो ताजिर है, जो कि जिन्होंने पीटीआई को वोट देकर हुकूमत में आए, ये मजबूर कर रहे हैं कि जलसे जुलूसों में आए, ये एहतजाज भी आए। पहले ही हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि हम इसके मुतहम्मिल ना हो। अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो लिहाजा फिर हम एहतजाज भी करेंगे, हम हड़तालें भी करेंगे, हम गल्ला मंडी को तो बाहर शिफ्ट नहीं होने देंगे। ये हमारा फैसला है। इतनी देर में अगर ये हमारा फैसला नहीं होता तो हम लोग एहतजाज पर नहीं। देखो ना, डेडलाइन तो उस वक्त देंगे ना जब ये हमें कहेंगे जी इस तारीख को आप निकल जाओ। भाई कैसे निकलें? अभी तो उन्होंने खौफ और इराज फैलाया हुआ है, तो वो बेचारे जो दुकानदार वहां पर छोटा है या बड़ा है, वो अपना बिजनेस करने से भी मुतासर हो गया कि हाँ भी क्या होता है, हाँ भी क्या होता है। तो इस वजह से हमने ये कहा आपने जो है वो पेप्सी का बाइकआउट किया, प्रोटेस्ट भी चलाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ जो खुद वो पी रहे हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपके उस बाइकआउट में अब तक आपने कितना नुकसान पहुंचाया जो है यहूदी प्रोजेक्ट्स को। कोई मुल्तान का ही बता दें आप लोग कि वो आपकी बाइकआउट कहाँ पहुंची। ये तहरीक तो अब नहीं आ गई ना, पिछली तहरीक का बता, वही पेप्सी ये आपके सारे दोस्त पी रहे हैं। एक तो मैं बताऊं ये थोड़ा सा कि पहले तो हलफ दिया था कि आइंदा आप ये प्रोजेक्ट इस्तेमाल नहीं करें। पहले तो मैं ये बता दूं, गल्ला मंडी वालों के साथ अब मेरी तो सुन लें। पहले तो मैं ये बता दूं, मुझे आती बोतल दी गई है, मैंने नहीं पी, वो नीचे गिरी हुई है, खाजा साहब ने फेंक दी। बोतल काट के आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। हो गया ये भाई के पास छोड़ दे, खत्म हो गया। इसका सबूत मैंने आपको दे दिया। तरबियत भी करते हैं। बार एसोसिएशन का रोल हमेशा से मल्टीपल रहा है, एक वॉचडॉग की हैसियत हासिल है जुडिशरी पे भी और हुकूमत पे भी। इस मल्टीपल रोल को हम निभाने की कोशिश में आपका ताउन इंतहाई जरूरी है। हम और आप मिलकर नाक़िद होते हैं हुकूमती पॉलिसियों के और निज़ाम इंसाफ में पाए जाने वाले सुकून। मकसद आपका और हमारा
एक है वो है इस मुल्क और कौम की तरक्की और हसूल इंसान। इस मकसद के हसूल के लिए हमारा इकट्ठा सफर नागुज़ीर है और बाहमी राब्ता उससे ज्यादा जरूरी है। इस बाहमी राब्ते के ताल्लुक को खुशगवार बनाने और इसमें हार्मनी पैदा करने के लिए आज हमने आपको ज़हमत दी है कि हम आपस में मिल बैठें और आने वाले कल के इवेंट की बेहतर तैयारी कर सकें। अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान में जानवर चोर भी सरगर्म हो गए। नामालूम चोर बस्ती बोहड़ में व्यापारी के 10 से ज्यादा बकरे लेकर रफू चक्कर हो गए। मजीद जानेंगे सरदार अली से। सरदार बताइएगा, कुछ मालूम पड़ सका पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, खबरदार होशियार, अब चोर जो हैं वो नकदी और जेवरात की बजाय ईद कुर्बान के करीब आते ही कुर्बानी के जानवरों को जो है वो चोरी करना शुरू हो गए हैं। हमारे साथ एक चरवाहा मौजूद है जिसकी 10 से ज्यादा बकरियों को जो है वो चोर चुरा कर ले गए हैं। और मजे की बात और हैरानगी की बात आप ये कहेंगे कि चरवाहे ने जब सिटीजन पोर्टल पर दरख्वास्त डाली तो उसके बाद थाना सीतलमाड़ी को भी होश आया कि कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे ही बात करते हैं। भाईजान बताइएगा, आपकी बकरियां चोरी हुई हैं, कैसे हुई, कितनी बकरियां चोरी हो गई और ईद कुर्बान करीब आ रही है, आपकी तो सारी जमा पंजी लूट गई। मेरी ना तकरीबन 10 से ज्यादा बकरियां चोरी हो गई हैं। ठीक है, तो ये पहले भी कार्रवाई हो रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती ना, पहले भी चोरी होती हैं, बहुत नुकसान हुआ है हमारा। तो जब मैंने लास्ट टाइम हमारी 10 बकरियां चोरी हुई हैं तो मैंने 15 पे कॉल की, दरख्वास्त की, उन्होंने दरख्वास्त हमारी नहीं ली। मैं 2-3 दिन गरीब इंसान हूँ, मैं 2-3 दिन चक्कर लगाता हूँ थाना के, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर मैंने 15 दोबारा कॉल की, उन्होंने कहा भी 1787 पे कॉल करें तो आईजी पंजाब की तरफ ना आपकी ना कंप्लेंट जाएगी, फिर वो कार्रवाई करेंगे। अच्छा ये बताएं कि आपकी बकरियां चोरी हुई तो पुलिस की जानिब से शुरू में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर आपने सिटीजन पोर्टल पे जाकर दरख्वास्त दी तो उसके बाद मतलब ये सब तमाम तर कार्रवाई हुई है पुलिस की जानिब से? जी, जब मैंने दरख्वास्त जमा हो गई थी ना उसके बाद फिर मैंने जब FIR करवाई, FIR नहीं ले रहे थे SHO साहब, FIR नहीं, मैंने बाद में जब दूसरी बार हमारी बकरी चोरी होने लगी है ना, तो मैंने दरख्वास्त के 1 हफ्ता बाद तो जब FIR के लिए मैंने अपील की, भाई नामजद मैंने करने नहीं तो नहीं ले रहे थे उन्होंने। हमने बंदे पकड़वाए, सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हम भागते रहे वहाँ पे थाना सीतलमाड़ी। ये बताइएगा कि बकरियां जो जितनी चोरी हुई तो क्या मालियत थी, एक बकरी की कितनी मालियत थी और कौन सी नस्ल की वो बकरियां थी जिनको चोरों ने बकरियों को भी नहीं छोड़ा? जी तकरीबन एक बकरी की मालियत 25 से 30 हज़ार थी, प्योर टेडी नस्ल की थी। तो जब हमने चोरी हुई मैं FIR कटवाई तो अब वो ना FIR पे कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब मैंने सिटीजन पे रिपोर्ट की, जब उन्होंने SB सदर साहब ने मुझे बुलाया, मैं गया उधर, उन्होंने भी सुनी। ये बताइएगा, अभी तक आपकी बकरियां जो हैं वो मिली नहीं हैं तो क्या मुतालबा करेंगे, क्या बकरियां ना मिलने पर भी आप सिटीजन पोर्टल पे दोबारा दरख्वास्त देंगे क्या? जी बिल्कुल, जब तक मेरा नुकसान नहीं होता मैं दोबारा बार बार मैं कंप्लेन करता रहूंगा, जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं कंप्लेन बार बार करता रहूंगा। मुतासरा चरवाहे का कहना है कि जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलता, मतलब जब तक उसकी सरदार अली आपका बहुत शुक्रिया। खिदमत आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के चर्चे तो बहुत किए जा रहे हैं लेकिन रहीम यार खान में सूरत हाल उलट ही नजर आती है। जनापा के इलाके में सीवरेज सिस्टम खराब पड़ा है। तफसला जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर कहिएगा, सीवरेज सिस्टम कब से खराब है, क्यों तवज्जो नहीं दी गई? बिल्कुल रहीम यार खान की जिली इंतजामिया की जो सफाई मुहिम है ग्रीन एंड क्लीन पंजाब और इसके साथ साथ खिदमत आपकी दहलीज, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दावे दिखाई दे रहे हैं, अमली इकदाम नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे रहीम यार खान की मसरूफ जिना पार्क की गली नंबर 12 है और इसके साथ साथ एक सरकारी स्कूल भी है जिसके बाहर जो है इस वक्त सीवरेज का पानी जमा है और आने जाने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों से जानते हैं भैया कितने अरसे से सूरत हाल बनी हुई है, गवर्नमेंट स्कूल की दीवार भी साथ है, तो इंतजामिया कहाँ पर है? ये जी काफ़ी अरसे से ये काम हो रहा है, ठीक है, अभी तक कोई सफाई का अमला नहीं आया, ना सफाई हो रही है, ना कुछ काम है, ना कोई बात है, ठीक है। ये गली नंबर 12 है, ठीक है, 7 स्कूल है, गली नंबर 10 भी है, वहाँ पे भी पानी खड़ा होता है, घरों में पानी खड़ा हुआ है और हमने अपनी आंखों से देखा है कि एक गंदे पानी में बच्ची गिरी है, उसका जबड़ा टूट गया, ठीक है। अब इंतज़ामिया इस चीज़ की कसूरवार है, हम तो नहीं है, ठीक है। बिल्कुल इनका ये कहना था कि शदीद मुश्किलात का सामना है गली नंबर 10। आमिर भट्टी आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नया निसाब छपकर मुल्तान पहुंच गया। नए निसाब की 8 लाख किताबें जिले की 750 सरकारी स्कूलों में तकसीम की जाएंगी। इसी पर अपडेट कर रही हैं अलिशा आसिफ। जी बिल्कुल, जिले
मुल्तान में किताबें तकसीम होने को तैयार हैं। 8 लाख किताबें जो हैं सरकारी स्कूलों में जाने के लिए यहाँ पे पहुँचा दी गई हैं। तकरीबन 750 स्कूल हैं जिनमें किताबें तकसीम की जाएंगी और सारे नए निसाब की किताबें हैं। पहले हम डिप्टी डीओ एलिमेंट्री शाहिद इकबाल से जान लेते हैं कि ये किताबें कब तक तकसीम हो जाएंगी। जी बताइएगा। हमने स्कूलों को शेड्यूल दे दिया है। 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक तमाम प्राइमरी, मिडल, हाई स्कूल जो है यहाँ पे मेल फीमेल आकर अपने अपने क्लास की जो तादाद है, स्कूल की तादाद है, उसके मुताबिक किताबें रिसीव कर लेंगे। हमारे पास जब गवर्नमेंट ने यकसा निसाब लगाया उसकी तमाम किताबें आ चुकी हैं और उसको हम डे बाय डे इसको तकसीम भी कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे फोकल पर्सन मौजूद है आबद साहब, वो इसको सारे को हैंडल कर रहे हैं और इसको हम बड़े इजीली तरीके से, ताकि किसी को परेशानी ना हो। प्राइमरी को अलहदा दिन दे रहे हैं हम, मिडिल को अलग से बुलाया हुआ है, हाई वालों को अलग से बुलाया हुआ है, ताकि इजीली वो अपनी किताबें यहाँ से रिसीव कर सकें। जी बिल्कुल, ये यहाँ के इंचार्ज हैं और इनकी जिम्मेदारी है तमाम। सही अलिशबा, आपका शुक्रिया। रेडियो मियाँ वाली को बने 16 साल हो गए। 16 साल मुकम्मल होने पर तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानेंगे अख्तर मजाज से। अख्तर मजाज, आज सालगिरह मनाई गई है, 16 साल हो गए हैं, किस किस ने शिरकत की है? जी बिल्कुल, आज रेडियो पाकिस्तान मियाँ वाली की 16वीं सालगिरह के मौका पर लेजेंड ऑफ पाकिस्तान, मियाँ वाली की शान, मियाँ वाली की जान, फख्र पाकिस्तान अतौल ईसा खैलवी, आपने यहाँ पे आए और आपने केक काटा। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपसे सराइकी में ही बात कर सकेंगे। लाला जी बहुत शुक्रिया, दूसरे इत्तेहाद केक कटा है। रेडियो तो तुम सफ़र शुरू किया है, बेपनाह रेडियो से तुम केक काट चुके हो, कैसे महसूस होंगे लाला? बड़ा शुक्रिया, थोड़ी मोहब्बत है, एहसानमंद हाँ, लेकिन मैं रेडियो तो शुरू नहीं किया, मैं तो कैसेट दाड़ रेडियो तो मैं बड़ी कोशिश के बावजूद बड़ी मुश्किल नाल मेरे को 1-2-3 मिनट का शौकिया प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान भावलपुर ते मिला ही 74-75 दे विच ते उस तो बाद मैं तो कैसेट के हवाले नाल अपने सुनने वाले चाहया। अच्छा लाला, मैं किसी जगह ते पढ़ा है या तुआरे के इंटरव्यू सुना है कि रेडियो वास्ते ऑडिशन बड़ी तो मुश्किलात का सामना रहा है। अज रेडियो खुद तुहानू इनवाइट करेंदा है और बड़े मिन्नत समाजत दे नाल रेडियो पहुंच जाओ लाला, वो माजी याद आंदा है? जाहिर है माजी याद रखना चाहिए, दोस्तों को सबक सीखना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेरा खूबसूरत माजी है। उस वक्त रेडियो पाकिस्तान है या पाकिस्तान टेलीविजन है, उत्थे एक क्लास जी एंटर थी। क्लास तो मुराद है कि उन्होंने को बाकायदा ABC आनी चाहिए है, पहाड़ा आना चाहिए, किस तरह शायर, हाँ शायर जेड़े ड्रामा लिखण वाले, ड्रामे काम करने वाले, नसर लिखण वाले, गायक, म्यूजिशियन, म्यूजिक डायरेक्टर, वो सारे एक प्रोसेस गुजर के कैमरे के सामने आने, माइक के सामने आने। लेकिन चूंकि मैं आदाब तो ना वाकिफ हूँ, इस वास्ते मेरे को रेडियो और PTV ने उस वक्त अहमियत नहीं दी। तो हुण इन्हां दी मोहब्बत है, वरना हुण भी नहीं देन तो मैं इन्हां दा क्या कर। अच्छा लाला, बहुत सारे TV चैनल इस टाइम पाकिस्तान बन गए, पूरी दुनिया च बहुत सारे चैनल। रेडियो और TV दे विच तुसीं की फर्क समझदे हो लाला? नहीं, जाहिर है रेडियो ते सिर्फ थोड़ी आवाज़ वेंदी है, तेरे TV ते थोड़ी तस्वीर भी वेंदी है ते आवाज़ भी वेंदी है, बड़ा बड़ा फर्क है। लेकिन अच्छा लाला, तुसा मौसीकी दे जिसले सफ़र शुरू किया, बहुत सारियां तकलीफां रिठियां, बहुत सारियां खुशियां रिठियां, बहुत सारियां मुहब्बतां मिलियां, कोई ऐसा वाकया, ये आम माने जो सवाल है, कोई ऐसा वाकया जिहड़े तुहानू दिली तौर पर अच्छा लगा हो? मेरिया वाकयात बहुत ज़्यादा ने, हर कदम ते एक वाकया है, लेकिन जेड़े सुनने वालों की मोहब्बत है, उन्होंने इनायत है, उन्होंने दुआवन और इतनी देर तो मेरे को सुनते पैन उन्होंने मोहब्बत है, इस वजह हो रहे। सही अख्तर मिजाज, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि तौंसा में असिस्टेंट कमिश्नर की दूध दही की दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा राबिया सियाल की पंजाब फूड अथॉरिटी के हमरा छापे, दूध के सैंपल चेक किए गए, दूध दही की 4 दुकानों को 35,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने केमिकल और पानी मिला दूध मौका पर जाया कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर की मुताबिक दुकानों को वार्निंग, दूध की क्वालिटी बेहतर बनाने की हिदायत जारी की हैं। तौंसा से आपको अपडेट कर रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की दूध दही की दुकानों के खिलाफ कार्रवाइयां। कामयाब कार्रवाइयों के नतीजे में राबिया सियाल पंजाब फूड अथॉरिटी की असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उन्होंने छापे मारे हैं, दूध के सैंपल चेक किए, दूध दही की 4 दुकानों को 35,000 रुपए फाइन आयद कर दिया गया।
दूसरी जानिब खानेवाल में जिला इंतजामिया शहर को साफ सुथरा और सरसब्ज बनाने के लिए कोशा है। डीसी ने सिटी पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा। शहर को खूबसूरत बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर खानेवाल अगर ज़हीर अब्बास शरादी और उनकी पूरी टीम जहां काम कर रही है, आज वहीं वो सिटी पार्क खानेवाल में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पौधा भी लगाया है, फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्ताह भी किया और साथ साथ जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए हैं उनके फिल्टर जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपनी जेर निगरानी जो है तब्दील भी करवाए हैं। तो मजीद हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर से। सर, बताइएगा कि खानेवाल शहर खिदमत आपकी दहलीज प्रोग्राम के तहत तीसरे मरहले में भी काम जारी हैं, आज अपने पौधा भी लगाया, तो क्या कहें? जी, ये एक तो जो बेसिक प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का चल रहा है, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का प्रोग्राम खिदमत आपकी दहलीज पर, और तीसरा जो है मेनली हमारी अपनी ड्यूटी में शामिल है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये ना सिर्फ प्रोग्रामों के साथ अटैच है बल्कि हमारी ज़िम्मेदारी में भी शामिल है। ये आज हमने यहाँ पे पौधा भी लगाया है, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का जो फ़िल्टर चेंज किया है, उसके साथ साथ सफाई का एक जो है वो भी यहाँ पे हम पॉइंट उसको भी साफ़ करेंगे। तो ये एक्टिविटीज़ इंशाल्लाह ये पर्टिकुलरली सितंबर तक चलती रहेंगी। अदरवाइज़ हम कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं। इसमें सीवर लाइनों की सफाई भी है, इसमें हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको मुहैया करना भी है, लाइट्स हैं, शजरकारी है, बहुत सारे इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं। इंशाल्लाह हम सिविल सोसाइटी की मदद से इन सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। सर, जिला इंतजामिया की जानिब से तो ये इकदाम किए जा रहे हैं, शहरियों को इस हवाले से क्या? आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डीएसपी दुनियापुर असलम खान बलोच का ट्रांसफर कर दिया गया है। दुनियापुर के शहरियों ने डीएसपी असलम खान बलोच को गुलदस्ते और हार पहनाए हैं और नेक तमन्नाओं के साथ उन्हें रुखसत भी किया है। इसी पर बात करेंगे याकूब ताहिर से। याकूब ताहिर, बताइएगा। इस वक्त दुनियापुर में मौजूद हूँ। पोस्टिंग और ट्रांसफ़र जो है ये भी एक जॉब का हिस्सा होता है। असल खूबसूरती तो ये होती है कि जिस वक्त जब बंदा ट्रांसफ़र होकर कहीं पे जाता है तो उस वक्त देखा जाता है कि उन्होंने यहाँ पे सीट पे बैठ के किस तरह से लोगों की खिदमत की है। इस वक्त डीएसपी असलम साहब जो है आज यहाँ से ट्रांसफ़र होकर ज़िला रहीम यार खां जा रहे हैं। उनका लोगों ने यहाँ पे रुखसती के वक्त जो है सबसे मिसाल इस्तेकबाल किया। इस वक्त डीएसपी असलम साहब मेरे साथ मौजूद है, मजीद से जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जिस तरह आप बताएंगे कि दुनियापुर में आपने जो अरसा यहाँ से गुजारा है तो वो किस तरह का आपने लोगों को यहाँ पर पाया और इनका प्यार मोहब्बत आपके लिए कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा यहाँ पे पहली पोस्टिंग थी इधर। पहले मैं कभी नहीं आया लोधरा में, तो पहली पोस्टिंग में मेरी जो है इधर को मैं 4-5 महीने मैंने गुजारे हैं, 5 माह। तो यहाँ पे बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। बेशक यहाँ का पानी जो है ये कड़वा है लेकिन लोग बहुत मीठे हैं। लोगों से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ रहा है। लोगों ने, आपने खुद देख लिया कि लोग कितना मुझसे प्यार कर रहे हैं और इंशाल्लाह इन लोगों को मैं भूलूंगा नहीं, दुनियापुर को भी नहीं भूलना। इन लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर किसी का कोई काम रहीम यार खां वैसे भी कोई काम है तो मुझे मिल के ज़रूर आइएगा। बिल्कुल जैसा कि असलम खान सही, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर आमद। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान और नामजद चीफ जस्टिस अमीर भट्टी के एजाज में जोहराने का एहतमाम डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की जानिब से किया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की बहावलपुर आमद हुई है। चीफ जस्टिस मिस्टर मोहम्मद कासिम खान और नामजद जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के एजाज में जोहराना दिया गया। शहीद बेनजीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह उलमा मशाइख विंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान की जानिब से बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। इसी पर तफसीलात से आगाह कर रहे हैं अमजद मलिक। जी बिल्कुल, शहीद बेनजीर भुट्टो की 68वीं सालगिरह के हवाले से आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उलमा मशाइख विंग की जानिब से केक काटा गया है सालगिरह का, जिसमें सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब ख्वाजा रिजवान आलम, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान राव रिजवान और इसके अलावा दीगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान और जियाले हैं उन्होंने शिरकत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा रिजवान आलम साहब। सर बताइएगा क्या कहेंगे, बेनजीर भुट्टो साहिबा की बाकायदा आपने केक काटा है, बड़ी तादाद में कारकुनान भी आपके साथ। देखें जी, आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं और हम समझते हैं, बल्कि हर पाकिस्तान का हर शहरी समझता है कि आज मुल्क में जो जमहूरियत है वो जमहूरियत की सर जो है वो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मरहून मिन्नत है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की एक तवील जदोजहद जो कि अमरीत के खिलाफ थी और जमहूरियत की बहाली के लिए थी और जमहूरियत के इस्तेकाम के लिए थी। आज यही वजह है कि मुल्क में तीसरा दौर जो है
एक जमहूरी दौर जो है मुकम्मल होने जा रहा है। ऐसे ही है और भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान मेरे साथ मौजूद हैं। उलमा मशाइख विंग से आप मौजूद हैं, क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आज इस मौके पर? आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के मौके पर हम सब खुशी का इजहार कर रहे हैं और इनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी, आमरों से लड़ी और पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जब भी जमहूरियत जो कायम है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वजह से है और इसमें तमाम लीडर हमारे और कारकुनों ने भी शहादतें कबूल की। बिल्कुल, सदर हमारे साथ मौजूद है इल्म मशाइख विंग के प्रोफेसर सुहेल साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मौके पर? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत के बारे में सारों ने जान लिया है और पिछली हुकूमतों में जितने भी आए हैं आप उनको भी जानते हैं और आप पीपल पार्टी का जो है रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितने भी बड़े बड़े कारनामे संजाम दिए हैं पीपल्स पार्टी ने वो आप लोगों के सामने हैं। आप 1973 के आइन से उठा लें 77 तक जुल्फ़कार हल करवाए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमजद मलिक, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए